Welcome you all on our online lecture series on engineering metrology subject. This is our 7th chapter, linear measurement. In this unit, we have to see the different linear measuring instrument. Now the main question is, what is meant by linear measurement? Linear measuring instruments are the instruments used for measurement of linear dimensions only. These instruments are generally either of line measurement type or end measurement type. These can be also divided or also classified as direct or indirect measuring instrument. Here we have common two types of instruments are there in linear measurement. First one is a non-precision type of instruments, and second one is a precision type of instrument. In non-precision type of instrument, we have three instruments are there. First one is a engineering steel scale, that is steel rule. Second one is a caliper, and third device is a divider. All these instruments are non-precision type of instruments which are used for line measurement and end measurements. We know that engineering steel scale is used for the line measurement, whereas caliper and divider are used for end measurement, so we can call them as indirect measuring instrument also. After that, the second type is precision type of instrument. इस प्रिसीजन टाइप इंस्ट्रूमेंट में चार इंस्ट्रूमेंट है. फर्स्ट वन इज अ वर्नियर कैलिपर, second one is vernier height gauge, then micrometer, and last one is a slip gauge. And all these instruments are used for end measurement, that is direct measurement purpose. This instrument is called as vernier caliper, this is called as vernier height gauge, this one is called as a micrometer, and these are the slip gauges which are used for end measurement purpose. Now we will see one by one precision type of instrument, in which first one is a vernier caliper. But before going in details, we must know the least count of vernier caliper. In previous lecture, we have studied what is meant by least count, and now in this lecture we will see vernier caliper least count and its nomenclature also. This figure is representing vernier caliper and its different parts also. In examination you have to draw this figure and write the naming of each and every part and their use also. So we will see one by one. This is the main scale of vernier caliper. This is the auxiliary scale of vernier caliper, or we can call it as a vernier scale also, or moving scale also. To the vernier scale, one jaw is attached, which is called as sliding jaw, and one jaw is connected to the main scale, which is called as fixed jaw. And the use of both the jaw is used for external dimension measurement, whereas these two jaw are used for internal measurement purpose. Here you can see that a fine adjustment screw is there to take a reading for fine adjustment purpose, and this nut is used for locking purpose. At the end we have one blade which is passed from the back side of main scale, and it is used for depth measuring purpose. On main scale and vernier scale we have engravement which are having unit in mm or inches, which is on main scale, and on vernier scale we have the division 50 for taking the small measurement purpose. Now we will see
how the measurement are carried out. This is the diagram of different measurement. Here you can see that in this figure we will take the external dimension of any object which can be carried out by using external jaws. In this figure, by using depth blade, that is the bottom side blade, we can use the depth of that hole, and these two jaw, upper jaw, are used for the internal dimension measurement purpose. We can measure different sizes of an object, that is external dimension, internal dimension, as well as depth also. Now the main point is that while measuring any dimension, we need three different dimensions. First one is a main scale reading, which is on main scale. Second one is a vernier scale division, that means which line is intersecting with the main scale. And third one is a least count of vernier caliper. So we will first of all calculate the vernier least count of vernier caliper, and then we will move towards the how we can measure the dimension by using the vernier caliper by practical. We will see what is meant by the least count. Least count of vernier caliper is 0.02, but we have to calculate by using this vernier caliper. For that purpose, we must know that the formula for vernier least count is smallest division on main scale, or the value of smallest division on main scale divided by number of division on vernier scale. This is our main scale, and we know that the value of one division on main scale is 1 mm here, and the total number of division on vernier scale are 50. Okay, now take the ratio of both the quantity, that is 1 divided by 50, and we will get least count is equal to 0.02. This is the one method for finding the least count of vernier caliper. Another way, that is value of one division on main scale minus value of one division on vernier scale. Here you can see that the 50 division which are on main scale are not representing exact 50 mm which on main scale. यहाँ पे अभी वर्नियर स्केल पे जो 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन मतलब मेन स्केल पे 50 mm ये नहीं है, क्योंकि ये जो 50 नंबर की जो लाइन है वर्नियर स्केल पे वो मेन स्केल के 49 mm डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है. मतलब क्या कि 50 डिवीजन जो भी वर्नियर स्केल पे है वो कितने mm है, तो 49 mm है. ओके, तो मेन स्केल पे 49 mm ये रिफ्लेक्ट करते हैं. तो एक डिवीजन है, 50 डिवीजन मतलब कितने, 49 mm, तो एक डिवीजन मतलब कितने, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, एक डिवीजन की वैल्यू 0.98. तो अभी लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. अभी यहाँ पे वर्नियर स्केल मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू है 1 mm माइनस वर्नियर स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू है 0.98. तो यहाँ पे हम 0.98 यहाँ पे लिख लेंगे. तो ये दोनों मतलब क्या, लिस्ट काउंट, और इसका आंसर आता है 0.02 mm. ओके, सो दोनों ही फॉर्मूले से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 0.02 mm है. ये आपको एग्जामिनेशन में जब लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आएगा वर्नियर कैलिपर, तो आपको एक्सप्लेनेशन में उसका लिस्ट काउंट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी यहाँ पे लिखना है. दोनों भी फॉर्मूला हमने देखा. 1 इज रेशो ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल और द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल divided by total number of division on vernier scale. Here this is a main scale of vernier caliper and this is a vernier scale. अब इसके बाद में
जो भी मेजरमेंट है वो मेजरमेंट कैसे लिए जाते हैं इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पे हमने एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर किया बाय यूजिंग दिस टू जॉज। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट होल्ड किया और होल्ड करने के बाद में लॉकिंग नट से हमने लॉक कर दिया। तो लॉक करने के बाद में यहाँ पे जो भी डायमेंशन है ये डायमेंशन हमें वर्नियर स्केल से मेजर करने। तो टोटल डायमेंशन मेजर करने के लिए हमें कौन कौन सी क्वांटिटी चाहिए। फर्स्ट क्वांटिटी इज अ मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग विच इज़ ऑन मेन स्केल। यहाँ पे जो भी रीडिंग आएगी वो रीडिंग को हम बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग। सेकेंड वन इज़ अ वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन को एग्जैक्टली मैच करती है, वो हो गई वर्नियर स्केल डिवीजन। और थर्ड क्वांटिटी है लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट क्या है 0.02 mm। ओके, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इससे पहले ऑब्जेक्ट को होल्ड कैसे करना है ये हम पहले देख लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे इस इमेज में जो भी डायमेंशन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। डायमेंशन मेजर करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे एंगल प्लेट, और इस एंगल प्लेट की जो ये थिकनेस है ये थिकनेस हम मेजर करेंगे बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर को ऐसे हमें होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में एक्सटर्नल डायमेंशन जॉ से हम इसे होल्ड करेंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे। मिनिमम प्रेशर अप्लाई होना चाहिए। कितना प्रेशर अप्लाई होना चाहिए, दोनों भी जॉ जो है वो दोनों सरफेस को, इस साइड के सरफेस को और इस साइड के सरफेस को टच करते हो, और टच करते हो जैसे ही ये टच करते वैसे ही हमें इस लॉकिंग नट को लॉक करना है, और लॉक करने के बाद में चेक करना है कि ये एग्जैक्टली टच होते हैं या नहीं टच होते। तो ये हमने लॉकिंग नट से लॉक कर दिया, और लॉक करने के बाद में ये जो इमेज है ये इमेज हमारे पास डायमेंशन की आ जाती है। तो इससे हम डायमेंशन मेजर करेंगे अभी। देखिए, जैसे ही हमने इस लॉकिंग नट को लॉक कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन आ जाते हैं, और ये डायमेंशन हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करने। तो डायमेंशन कैलकुलेट करते वक्त आपको एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करना है कि वर्नियर स्केल का जो 0 पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मेन स्केल की कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी लाइन को वो मैच कर रहा है, या कौन सी लाइन को उसने क्रॉस कर दिया, उसकी रीडिंग कितनी है ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे जूम कर लेते हैं। वर्नियर स्केल का जो 0 पॉइंट है ये 0 पॉइंट मेन स्केल के 8 नंबर की लाइन को क्रॉस करता है। ये 0 की लाइन हो गई फर्स्ट नंबर, देन सेकेंड नंबर, ये अभी 5th नंबर की लाइन, और उसके बाद में आप कैलकुलेट करते हो तो 3rd नंबर की जो लाइन है ये 3rd नंबर की लाइन को ये 0 क्रॉस कर रहा है। ओके, तो मेन स्केल की लाइन पे कितनी क्वांटिटी हो गई, 8 mm क्वांटिटी हो गई। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, 8 mm हो गए। तो 8 mm को ये वर्नियर स्केल का 0 क्रॉस कर रहा है, मतलब 8 mm एंड समथिंग डिस्टेंस है। तो वो 8 mm के बाद में कितना है तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया 8 mm प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे वर्नियर स्केल की कौन सी ऐसी लाइन है वो एग्जैक्टली मेन स्केल की लाइन को टच करती है, मीट करती है एग्जैक्टली, वो हमें अभी यहाँ पे देखना है। तो ये जो 3 नंबर की लाइन है ये अभी मेन स्केल की लाइन को एग्जैक्टली मैच करती है। तो इसका काउंट कितना है, 0 से लेके 1 तक 5 लाइन्स है, उसके बाद में भी 5 लाइन्स है, टोटल हो गए 10। देन 3 तक ये 15 लाइन्स है, मतलब 3 नंबर की जो ये लाइन है ये 15 डिवीजन है। कहाँ पे, वर्नियर कैलिपर पे, वर्नियर स्केल पे। तो हम यहाँ पे 15 नंबर की डिवीजन जो मैच हो रही है उसका काउंट यहाँ पे लिख लेंगे, कितनी नंबर की काउंट है वो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ काउंट है डिवीजन्स का, इस पे यूनिट नहीं है, तो खाली हम काउंट लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.02 से।
दैट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और इसका हम अभी प्रोडक्ट लेके उसको 8 से ऐड कर देंगे। तो फाइनल रीडिंग बनेगा ये 8 एज इट इज़ प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ये हो गया 0.3, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया 8.3 mm इज़ द डिस्टेंस विच इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग दिस एक्सटर्नल जॉज। इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। और इस जॉ में जैसे हमने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होल्ड किया था वैसे ही इस जॉ में हम इंटरनल ऑब्जेक्ट होल्ड करेंगे। जैसे कि किसी होल का अगर इंटरनल डायमीटर हमें मेजर करना है तो इस दोनों जॉ में हम ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे, और सिमिलर वे से यहाँ पे जो हमने रीडिंग अभी कैलकुलेट की है वही रीडिंग हम कैलकुलेट करेंगे। जो भी वर्नियर कैलिपर का हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते वक्त कौन कौन से एरर वहाँ पे आ सकते हैं ये आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। फर्स्ट एरर इज़ एरर ड्यू टू प्ले बिटवीन स्लाइडिंग जॉ एंड फिक्स स्केल बार। जो भी स्केल है और स्लाइडिंग स्केल है उसके अंदर जो प्ले रहता है उसकी वजह से एरर आ सकते हैं। सेकेंड वन इज़ अ एरर ड्यू टू वियर एंड रैपिंग ऑफ जॉ। जो जॉ हम यूज़ करते हैं उसका अगर फेस वियर हो जाता है तो उसकी वजह से भी एरर आते हैं मेजरमेंट करते वक्त। थर्ड वन इज़ एरर ड्यू टू इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्केल रीडिंग। जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखे, जो रीडिंग देखी, अगर वो रीडिंग एग्जैक्टली कौन सी डिवीज़न मैच होती है, अगर 15 नंबर की डिवीज़न मैच होती है और हमने लिखते वक्त रीडिंग देखते वक्त 20 नंबर की डिवीज़न ले ली तो यहाँ पे डायमेंशन में चेंजेस आ जाएंगे, तो वो ऑब्जर्वेशन हो गए। फोर्थ पॉइंट इज़ अ एरर ड्यू टू एक्सेसिव फोर्स ऑन मूविंग जॉ। जब हमने लॉक करते वक्त यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया था वो फोर्स अगर ज़्यादा होता है तो भी एरर आते हैं। एंड लास्ट एरर इन वर्नियर कैलिपर इज एरर is also introduced if the line of measurement does not coincide with the line of scale। ये हो गए एरर इन स्केल। इसके बाद में आपको प्रिकॉशंस वर्नियर कैलिपर यूज़ करते वक्त कौन कौन सी प्रिकॉशंस यहाँ पे लेने हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जब हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे तब ये पॉइंट हमें चेक करना है कि उस वर्नियर कैलिपर में प्ले नहीं होना चाहिए। जो भी जॉज है वो अच्छी तरह से हो, उसमें कुछ वियर एंड टियर नहीं होना चाहिए। जब हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे तो यूज़ होने के बाद में हमें उसे अच्छी तरह से रखना है ताकि उसमें बेंडिंग ना आ सके। जब हम उसको रफली रख देते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, रफली रखने की वजह से उसके जो जॉज है उस जॉ में बेंड हो सकता है और वो इम्प्रॉपर रीडिंग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी आप प्रिकॉशंस है, ये आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है और मेजरमेंट करते वक्त आपको याद रखना। आज के इस लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर का जो पॉइंट दिखा है वो आपको ड्रॉ करना है। वर्नियर कैलिपर की फिगर, उसके सारे पॉइंट्स लिखने हैं और जो भी डायमेंशन हमने मेजर किए और लिस्ट काउंट जैसा ही मेजर किया वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नोट करनी है आपकी नोटबुक में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मेजरिंग इक्विपमेंट देखेंगे, दैट इज़ हाइट गेज एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। थैंक यू।